ہے اور ہم سب سے پیار کرتا ہے. بڑا خوبصورت وقت ہے ہمارے پاس. ہم خدا کے کلام میں سے چند ایک باتیں اپنی رہنمائی کے لیے نکالیں گے. یہونا کی انجیل 8واں باب. بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. انہوں نے اسے جواب دیا ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے. یسوع نے انہیں جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا بیٹا اب تک رہتا ہے. آمین. آمین. خدا کے کلام کا یہ حصہ جو آپ نے پڑھا ہے اس پر غور کرتے ہیں کیونکہ آج ایک خاص دن کی یاد میں پاکستان میں جلسے جلوس اور طرح طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. لیکن بائبل میں کیا سکھاتی ہے؟ بائبل اس سے فرق ہمیں سکھاتی ہے. جس طرح سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یسوع مسیح اس سے فرق بیان کرتے ہیں. کیونکہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کے پاس خدا کا مکاشفہ نہیں ہے, لوگوں کے پاس خدا کا کلام نہیں ہے. جب تک ہم کلام کو نہیں سمجھیں گے, خدا کی حکمت اور خدا کے خیال, خدا کے وزڈم کو نہیں سمجھیں گے, تب تک ہم کسی بھی چیز کے صحیح معنی نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ انسانی عقل کچھ بھی نہیں ہے. انسانی عقل بالکل رد ہے خدا کے سامنے. جس آزادی کا ہم ذکر کرتے ہیں یہ ایک ملک کی آزادی ہے جس کو پاکستان میں 14 اگست کو منایا جاتا ہے, انڈیا میں 15 اگست کو. اس طرح سے اور بھی کچھ ملک ہیں جن کی اپنی اپنی ڈیٹس ہیں اور ان ڈیٹس پر وہ اپنے اپنے ملک کے لیے آزادی کے لیے خوشیاں مناتے ہیں. ایک قوم کا ذکر بائبل میں ملتا ہے, وہ بنی اسرائیل قوم ہے اور وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے. باقی قوموں کو غیر قوم اور غلام سمجھتی ہے, صرف اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے. لیکن یسوع مسیح یہودیوں سے جو اس کا یقین کرتے تھے ان سے کلام کرتے ہیں اور ان کو آزادی کے بارے میں سکھاتے ہیں. آج ہم بھی اس موقع پر بائبل میں سے آزادی کے بارے میں چند ایک باتیں سیکھیں گے. بات اس طرح کی ہے, یسوع مسیح نے کہا اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت یہ ہے کہ تم میرے شاگرد ٹھہرو گے. اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے تم میرے شاگرد ٹھہرو گے. پھر یہ بھی لکھا ہے کہ شاگردوں نے جو یسوع پر یقین کرتے تھے, یہودی تھے, ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا تو ہمیں کیوں کر غلام کہتا ہے, کیونکہ ہم نے تو کبھی غلامی نہیں کی, ہم تو ہمیشہ
से आजाद हैं। कभी किसी की गुलामी हमने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं। वो समझते थे कि हम नस्ली तौर पर आजाद हैं। हम चूंकि इब्राहिम की नस्ल से हैं, इसलिए हम आजाद हैं। हम पाकिस्तानी समझते हैं कि हमारा मुल्क इंडिया से अलग हुआ है, इसलिए हमें आजादी मिली है। इसी तरह यहूदी समझते थे हम चूंकि इब्राहिम की नस्ल से हैं, इसलिए हम आजाद हैं। तो यीशु मसीह का ख्याल इस आजादी के हवाले से सुनिए। आप इसको 34वीं आयत से देख सकते हैं। इस तरह से लिखा है, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। यीशु मसीह ने उनसे कहा, उनको जवाब दिया, मैं तुमको सच कहता हूं। हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, या ये कह लें हकीकत या हकीकी आजादी क्या है। यीशु मसीह इसके मानी खोलते हैं और यूं कहते हैं, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। जो भी कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। आज हम आजादी के हवाले से जो देखते हैं या लोगों को करते हुए सुनते हैं, वो गुनाह के साथ किया जाता है। लोग शराबनोशी करते हैं आजादी में, लोग गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और हवाई फायरिंग करते हैं। फिर लोग अपनी मोटरसाइकिल पर व्हीलिंग करते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, हालात खराब हो रहे हैं और कई किस्म के म्यूजिक बाजे बजाकर शोर डाला जा रहा है और लोगों को तंग किया जा रहा है। ये सारी चीजें बेशक वो आजादी के लिए करते हैं, तो भी बाइबल कहती है कि वो हकीकी आजादी को नहीं समझते। यीशु मसीह ने खोला कि हकीकी आजादी क्या है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। फिर आगे क्या लिखा है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता बल्कि बेटा रहता है। गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, गुलाम आता है वापस चला जाता है, उसका टाइम खत्म हो जाता है। अब तक घर का मालिक नहीं होता, लेकिन बेटा अब तक घर में रहता है, क्योंकि बेटा मालिक है। अब यीशु मसीह यहाँ पर उनको सिखाते हैं कि जिसको तुम आजादी कहते हो या जिसको तुम आजादी समझते हो, वो आजादी नहीं है। तुम समझते हो कि हम इब्राहिम की नस्ल से हैं, इस वजह से आजाद हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत जो बाइबल की सच्चाई है, जिसको बाइबल आजादी कहती है, वो है गुनाह से आजादी, गुनाह की गुलामी से रहाई। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का, बोलिए जरा, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। वो गुनाह का गुलाम है। जो भी कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। फिर आजादी कैसे मिलती है? बेटे के वसीला से आजादी मिलती है। अगली आयत में क्या लिखा है?
36वें आयत में लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो। अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो। अगर कोई बेटे के बगैर, अगर कोई बेटे के कलाम के बगैर, अगर कोई मसीही जिंदगी के बगैर, अगर कोई बाइबल मुकद्दस के बगैर आजादी को समझने की कोशिश करेगा तो वो गलत समझेगा। क्योंकि आजादी के बारे में जो नॉलेज है वो बाइबल में से हमें मिलता है। बाइबल सिखाती है आजादी क्या चीज है। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। यीशु मसीह का मिशन आजादी देना। यशायाह नबी ने इसके बारे में नबूवत की। जब हम यशायाह का सहीफा पढ़ते हैं 61वां बाब, तो पहली आयत में हमें मिलता है, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। यशायाह नबी को खुदावंद का मुकाशफा मिला, यीशु मसीह के बारे में नबूवत मिली, तो उसने यूं लिखा 61वें बाब की पहली आयत में, खुदावंद की रूह मुझ पर है। उसने यूं कहा कि खुदावंद की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया, क्योंकि उसने मुझे मसा किया है, ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, ताकि मैं हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कि शिकस्ता दिलों को, जो टूटे हुए दिल हैं उनको तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रहाई और कैदियों को रहाई के लिए, और असीरों के लिए आजादी का ऐलान और करूं। असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। यशायाह का सहीफा ये कहता है कि यीशु मसीह को इसीलिए मसा किया गया कि वो गुनाहों से आजादी दे, कैदियों को रहाई बख्शे। लूका अपनी तारीख में यूं कहता है, लूका का मुसन्नफ जो है वो यूं कहता है 4 बाब में लूका की इंजील में कि यशायाह नबी का सहीफा उसे पढ़ने को दिया गया। ऐसा वक्त था कि जब वो तालीम के लिए हैकल में खड़ा हुआ तो वहां पर उसको सुनने वालों ने यशायाह का सहीफा, यशायाह की किताब उसको दी गई। बेशक उस वक्त तमार में लिखी थी, तो उसको यूं पेश की गई कि वो कुछ पढ़कर सुनाए। तो बाइबल लिखा है उसने वो वाला हिस्सा निकाला जो उसके हक में लिखा हुआ था। लूका की इंजील के 4 बाब में 17वीं आयत से पढ़िए। और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, यीशु मसीह को यशायाह नबी की किताब दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला, और किताब खोली और उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था जहां पर ये लिखा हुआ था कि खुदा का रूह मुझ पर है, और लिखा ये था कि खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मस्सा किया, इसलिए उसने मुझे मस्सा किया कि मैं गरीबों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को और रहाई, खुदा ने मुझे भेजा है कि मैं कैदियों को रहाई दूं, और अंधों को बेनाई पाने की और जो खुशखबरी अंधे हैं, सुनाऊं, जो देख नहीं सकते उनको बेनाई पाने की खुशखबरी दूं, कुचले हुओं को आजाद और जो करूं, कुचले हुए हैं, जो पिसे हुए हैं, जो दुख में हैं, जो गुनाह की दलदल में हैं, उनको आजाद करूं। आमीन। आमीन। यीशु मसीह का मिशन था कि वो लोगों को आजादी का ऐलान दें, लोगों को आजादी की खबर दें। तो आजादी के जो सही मानी सीखना चाहते हैं, जो कोई आजादी के बारे में सीखना चाहता है, उसे सही सीखने के लिए बाइबल में आना जरूरी है, और बाइबल में आके यीशु मसीह की तालीम को सीखना जरूरी है कि आजादी क्या चीज है। आजादी, हकीकी आजादी क्या है? हकीकी आजादी ये है कि उसने मुझे मस्सा किया है कि मैं आजादी का ऐलान करूं। वो मस्सा इसलिए हुआ था कि वो लोगों को गुनाहों से आजाद करे। जब यहूदियों को, जब बनी इस्राएल कौम को ये सिखाया गया,
अगर बेटे पर यकीन करो, उसके कलाम पर यकीन करो, तो फिर तुम हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरो। और मैं तुम्हें आजादी दूंगा गुनाहों से, तुम आजाद किए जाओगे, तुम वाकई आजाद होगे। तो उनको इस बात की समझ नहीं आ रही, वो आजादी के मफहूम को समझ नहीं रहे थे, क्योंकि वो अपने आप को बड़े आलम समझते थे, अपने आप को बड़े वो पाकीज़ा समझते थे, और इब्राहिम की नस्ल से समझकर अपने आप को अपने दिल में आजाद समझते थे। जैसे बहुत सारे लोग अपने आप को इस तरह से समझते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इस हकीकत को इस तरह से खोला, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। और बाइबल ये बताती है कि जो कोई आजादी की शरीयत को समझता है वो बरकत पाएगा। जो कोई आजादी की शरीयत को समझता है वो बरकत पाएगा। आजादी की शरीयत को समझना जरूरी है। याकूब के खत में पहले बाब की 25वीं आयत में पढ़िए। याकूब का खत उसके पहले बाब की 25वीं आयत में लेकिन जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर करता, जो शख्स नजर करता है, जो शख्स भी आजादी की कामल शरीयत पर नजर करके उस पर गौर करता, उस पर तवज्जो देता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा, इसी वजह से अपने कलाम में बरकत, अपने काम में बरकत पाएगा। उसका उठना बैठना बोलना चलना कलाम करना सब कुछ बाइसे बरकत होगा। कि सुनकर भूलता नहीं, वो सुन लेता है खुदा के कलाम को, खुदा की शरीयत को, फिर उसको याद करता है, भूलता नहीं है, बल्कि अमल करता है, बल्कि खुदा के कलाम पर अमल करता है, इसलिए वो बरकत पाएगा। जो कोई आजादी की शरीयत पर गौर करता है उसको समझ जाता है, बाइबल ये बताती है कि वो बरकत पाएगा। जब हम खुदा के कलाम के मुख्तलिफ हवाले हम पढ़ते हैं, अगर हम गलतियों में 5वें बाब की पहली आयत पढ़ते हैं, गलतियों में पहले बाब की 5वीं आयत, तो बाइबल लिखा है तुम आजाद किए जाओगे। आजाद किए जाना ये बाइबल ये हमें सिखा सकती है, और गुनाहों से आजादी रहाई बख्श सकती है। फिर हम जब इसकी 13वीं आयत को भी पढ़ते हैं, 13वीं आयत में मिलता है कि भाइयों जी तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, बुलाए गए हो, आजादी की बुलाहट हुई है आपको, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने। ऐसा ना हो कि वो आजादी जो आपको मिली है जिस्मानी बातों का मौका पाले, बल्कि मोहब्बत की राह से, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो, एक दूसरे की खिदमत करो, एक दूसरे की इज्जत करो। ये नहीं कि आपको आजादी मिल गई है अब एक दूसरे को तंग करना शुरू कर दो, अब एक दूसरे को सताना शुरू कर दो, अब एक दूसरे के लिए मुश्किल पैदा करो, बल्कि बाइबल में लिखा है तुम बुलाए आजादी के लिए गए हो, तुम्हारी बुलाहट आजादी की है। फिर अगर आजादी की आपको समझ आ गई है तो जिस्मानी बातों में ना फंसो, उनको मौका ना दो, जिस्मानी ख्वाहिशात में ना चलो। जिसके बारे में मैं नेट पे रात को सुन रहा था, कोई कह रहा था कि मनचले अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, उनका नाम मनचले रखा गया था। मनचले आजादी में वो मनचली करते हैं, जो उनके मन में आता है वो करते हैं। बाइबल ये सिखाती है मनचले न बनो, जो कुछ आपको समझ आती है वो ना करो, जिस्मानी चीजों से आजादी को खराब ना करो, बल्कि आजादी को समझो। आजादी क्या है? तुम्हारी बुलाहट आजादी है। फिर अगर आप पतरस के खत में पढ़ते हैं, पतरस इसके बारे में क्या सिखाता है? पतरस का पहला खत उसके दूसरे बाब की 16वीं आयत पढ़िए, तो आजादी के बारे में कुछ सिखाया जा रहा है। पतरस अपने ख्याल किस तरह से बयान करता है? क्योंकि लिखा है कि पाक हो, लिखा है कि तुम पाक बनो, इसलिए कि मैं पाक हूँ, इसलिए कि मैं पाक हूँ।
और जब कि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो हाँ, जो हर एक काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का ज़माना खौफ के साथ बाइबल गुजारो। वो बताता है कि पाक बनो, तुम पाक बनो, और जब तुम पाक बनते हो तो फिर तुम उसकी पाकीज़गी को समझो। तो वो क्या सिखाता है, जिस तरह से वो पाक है, जिस तरह का ख्याल वो तुम्हें देता है, उस तरह के ख्याल में वापस आओ। फिर आप जब खुदा के कलाम को रिसर्च करते हैं और फिर आप गौर से उस पर नजर करते हैं, दूसरे बाब की 16वीं आयत में, और अपने आप को आज़ाद जानो, अपने आप को आजाद समझो, अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आज़ादी का बदी का पर्दा ना बनाओ। बल्कि इस आजादी को तुम बदी का पर्दा ना बना लो। अपने आप को खुदा के बंदे जानो, अपने आप को समझो कि तुम खुदा के बंदे हो, सबकी इज्जत करो, फिर सबकी इज्जत भी करो, बरादरी से मोहब्बत रखो, एक दूसरे से प्यार भी करो, खुदा से डरो, खुदा से भी डरो, बादशाह की इज्जत करो। और सबकी इज्जत करो। ये सब बातें आपको आजादी के लिए बताई गई हैं, क्योंकि आपकी बुलाहट आजादी है। तुम्हारी आजादी बदी का पर्दा ना बन जाए। अगर आजादी मिली है, उसको समझे बगैर लोग आजादी को बदी का पर्दा बना लेते हैं। आजादी को गलत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है तुम्हारी आजादी जो है वो बदी का पर्दा ना बन जाए। फिर यीशु मसीह ने सिखाया यूहन्ना की इंजील में, जब सिखाया यहूदियों को कि असल आजादी होती क्या है, उसने ये बताया, अगर तुम हकीकत में समझो, अगर मेरे कलाम पर कायम रहो, अगर तुम मेरे कलाम को समझो, तो फिर तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ हो, तो सच्चाई तुमको आजाद करेगा। कौन आजाद करेगा? खुदा का कलाम। यूहन्ना की इंजील में लिखा है 17वें बाब की 17वीं आयत में, तेरा कलाम सच्चाई है, उन्हें सच्चाई के वसीला से पार करो, क्योंकि तेरा कलाम सच्चाई है। तो यीशु मसीह कहता है कि आजादी से वाकिफ, आजादी को सीखना चाहते हो, आजादी को हासिल करना चाहते हो, तो सच्चाई से वाकिफ, सच्चाई से, और सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच्चाई तुमको आजाद करेगी। खुदा का कलाम सच्चाई है, कलाम तुमको आजाद करेगा। फिर ये लिखा है, उसने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई गुनाह करता है, गुनाह का कलाम है। अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो फिर तुम वाकई आजाद हो। जो कोई गुनाह करता है, गुनाह का, बोलिए जरा, जो कोई गुनाह करता है, गुनाह का, गुनाह का, जो भी कोई गुनाह करता है, अगर कोई बड़ा आलिम आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा है और बड़ा इल्म उसके पास है, तो भी गुनाह में जिंदगी गुजारता है, तो गुनाह का गुलाम है। अगर कोई पास्टर प्रीच करता है, कलाम सिखाता है, अगर वो गुनाह करता है तो गुनाह का, अगर कोई बिशप या पोप या कोई फादर या मनात या मुबश्शिर गुनाह करता है तो गुनाह का कलाम है। क्यों? अगर वो सब कुछ करता है लेकिन बाइबल की सच्चाई को नहीं समझता। बाइबल ये सिखाती है, जो कोई गुनाह करता है, गुनाह का, सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। अगर कोई हकीकी सच्चाई जानना चाहता है या आजादी के मानी समझना चाहता है, तो बाइबल को समझिए, बाइबल को जानिए, बाइबल क्या सिखाती है। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।